Please welcome Pervez Hoodbai, Sabrina Kambar, and our guest speaker, Shehzad Ghias. Assalamu alaikum. Shehzad, on behalf of everyone in Islamabad, welcome. I think we can see from the turnout that there's a lot of people here who want to hear from you. Hopefully, आप लोगों को मौका भी मिला होगा इनकी किताब पढ़ने का. देखें इसमें से 5-10 तो उन्होंने भेजे हैं ना. देखिए कौन नहीं हंसा इस पर, उस पर नजर रखे. चलिए किसी भी बहाने अगर लोग किताब पढ़ लें तो ये अच्छी बात ही होगी. लेकिन उनको यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ यूट्यूब पर देख सकते हैं, लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं. नहीं हो सकता है ना मुझे साथ लेके जाना. हाँ, ये आपने बारात लगाई है, डोली वो उठाएंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. My name is Shehzad Ghias. Maybe how I got here today is a story for another TED Talk, but it's a great tale on how to not accept no as an answer. Somehow, through the road constructions, through the tire bursts, I have made it. So thank you, TEDx Akkar. Thank you, Hassan. Thank you, everybody here, for inviting me. The story I want to tell today is about Pakistan Lost. It's a little book that I have written. 4 पार्ट्स में मैं आप लोगों को उसकी कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि क्यों लिखी है. तो ये जो क्यों का भी एक सवाल है, उसको मैं कोशिश करूँगा आज थोड़ा ब्रेक डाउन करने की. एंड द प्लान इज़ टू ब्रेक इट डाउन इनटू 4 पार्ट्स. Why this? Why now? Why me? Why not? But it's especially a pleasure for me because the author of this book is, I don't know if it's safe to call you a dear friend anymore, but a dear friend, Shehzad, who is also somebody that I spent maybe too many years with at LUMS. He was a law major, I was a law major. We spent 5 years talking about the law and debating about the law and disagreeing about pretty much everything. In criminal law, we would debate about qisas, and in human rights law, we would argue about the UN, and in contract law, we would probably not argue about anything because it was an 8 a.m. class and Shehzad never showed up. But it is really a pleasure to be hosting him here today and to be talking about his book, which is quite a compact and accessible history of Pakistan, which aims to upend and perhaps dislodge certain conceptions or misconceptions people have about Pakistan's historical development. So the first question I will ask you, Shehzad, first of all, welcome. How does it feel to be back at LUMS? Feels great. Thank you everybody for showing up, and thank you Aisha for doing this. It's particularly an honor to have you here today and do this. And I've already sent you the meme so that we can recreate the Paul Rudd moment and be like, look at us now. Look at us now. Started from the bottom. Why did you write the book? I was bored. No, seriously. It started when she left me. No, it didn't. No, it didn't. So I'll ask a better question, right? So you've explored these ideas. It was originally called Love Lost. Still called that. What's it called? So you've explored these ideas on your podcast. You've had conversations that a lot of people, including myself, would stay away from, right? And you've done that, and you've made videos, and those are perhaps more palatable mediums. Why write a book? Why do that? कहीं इसी ऑडिटोरियम में एला हुसैन बैठी हुई हैं. She was the editor at Liberty. So in 2023 we did a series on the channel called Pakistan Lost, where we were exploring most of the same ideas. And then on behalf of Liberty, Ella got in touch and said, would you be interested in writing a book? I said, ये एक ख्याल है, एक बड़ी मेहनत लगी है इस सीरीज़ में, तो we can turn that into a book. अगर जिन लोगों ने पढ़ ली है सेक्शन A का जो 5th essay है on 1971, that is the first essay that I sent to Liberty, and I said, if you have the to publish this, then we can go ahead with the book. अगर ये नहीं कहा जा सकता जो 1971 के essay में मैंने कहा है, then there is no point going on. चलिए शहजाद, मैं चाहती हूँ कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपकी किताब लें और उसे पढ़ें, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपसे सवाल पूछूंगी, ज़्यादा जेनेरिक, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और फिर प्रोफेसर इफ़ यू कुड आल्सो आंसर इट, इज़ ये किताब किसको पढ़नी चाहिए और उन्हें क्यों ये किताब पढ़नी चाहिए?
you've put me on the spot. सबरीना मेरे साथ लाउंज में थी, उन्होंने मुझे मार्केटिंग क्लास में डाल दिया कि सेल मी दिस पेन. किताब लिखने का मकसद भी ये था कि देखें बहुत अच्छा काम हो चुका है. हूद बॉय साहब की एक बहुत अच्छी एक सेमिनल सी किताब है जिसमें कई टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं. अभी लम्ज़ में मैं जा रहा हूँ, अली उस्मान कासमी साहब के साथ हमारा सेशन है, उनकी एक बहुत बेहतरीन किताब है. मोहम्मद वसीम है, उनकी बहुत बेहतरीन किताब है. मैंने कोई री इन्वेंट नहीं किया व्हील. अगर किसी ने भी इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट दिस बुक इज़. इट्स नॉट ट्राइंग टू बी मोर देन व्हाट इट इज़. अगर ये आपकी उम्र क्या है? 13 साल. अगर आज नहीं 3-4 साल बाद ये किताब उठाएंगे तो हो सकता है इनके लिए मोहम्मद वसीम उठाना मुश्किल हो जाए, हो सकता है इनके लिए के अजीज़ उठाना मुश्किल हो जाए, हो सकता है इनसे अली उस्मान कासमी या हूद बॉय साहब की किताब उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाए. सो like I said in the introduction, I want this to be a gateway drug. With every single topic that I touch upon, I make sure to write a footnote that if you're interested more particularly in this thing, go and read this. तो इस किताब का थोड़ा मकसद ये है कि ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक शुरुआत है, ये ऑलमोस्ट एक कैटलॉग है कि आप खोलें कि वो ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था. इस बारे में अगर और जानना है तो ये 10 किताबें और हैं. तो अगर तारीख़ में आजकल स्पेशली जो सियासत हो रही है, लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मे बी द थिंग्स वी बिलीव एज चिल्ड्रन मे नॉट बी ट्रू. द स्काई मे नॉट बी ग्रीन एज वी सॉ इट, वी मे नॉट ब्लीड ग्रीन एज वी थॉट वी डिड. तो वो एक अच्छा जंक्चर है आज इस तरह की किताब आना, जो आपको सिर्फ एक ऑलमोस्ट ट्रेलर दे सके कि हमारी तारीख़ में क्या क्या हुआ है और इस बारे में जिन जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है. ऑनेस्टली, लाइक आई सेड इन द इंट्रोडक्शन एज वेल, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल. इट्स ऑल्सो अ वे टू हाईलाइट द ग्रेट वर्क डन बाय देम. So this book was meant to be sort of a catalogue. Okay, I introduced a lot of ideas. Some of them are mine, some of them I have heavily borrowed from people who've done immense work before me. To introduce those ideas to you, to sort of spark that interest and curiosity, and almost at the end of every chapter, even when I reference certain ideas that I don't explore, I try कि मैं footnote में लिख दूँ कि अगर आपको ये specific idea और explore करना है तो ये किताब है. So I think of this book as like a scavenger hunt, कि मैंने आपको ट्रेलर्स बहुत सारी चीज़ों के दिखा दिए हैं, एंड होपफुली वो ट्रेलर्स इतने अच्छे हैं कि आप लोग फिर फिल्म देखें. तो मैं ट्रेलर हूँ, फिल्म कासमी साहब हैं, फिल्म मोहम्मद वसीम साहब हैं, फिल्म आप हैं. जो दूसरा पहलू मेरी नज़र में सवाल का है कि मैंने क्यों लिखी है. आई फील लाइक द जनरेशन, स्पेशली अ लॉट ऑफ यू, मुझे भी अब लगने शुरू हो गया, मैं भी रिसेंटली यूथ हूँ. समहाउ आई बिलीव दैट होपफुली दिस बुक विल एग्जिस्ट बियॉन्ड द चैनल, बियॉन्ड मी, एंड इवन इफ आई एम टू बी साइलेंस्ड टुमारो और द डे आफ्टर. ये तो अब छप गई ना, अब ये तो चली गई, अब कितनी चलाएंगे कॉपीज़. तो जो मेरे ख़यालात बने हैं, जो मेरी सोच बनी है पिछले कुछ सालों में, एक तवील अरसे में, उस सोच को लिखना, एंड देन इन मैनी वेज द वे आई लिव माई एंटायर लाइफ इज़ थ्रू दैट कोड दैट बी द पर्सन यू वांटेड टू बी व्हेन यू वर यंग. So this book also exists because this is the kind of book I wish I had when I was 18, when I was 19, when I was 20. के उस वक्त आप एक बड़ी सी वॉल्यूम ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें या एक कोई प्रॉपर एकेडमिक हिस्टोरियन की किताब देखें, they're a bit daunting. But I think a book like this is palatable, it's accessible, and it allows you the opportunity that एक स्कैवेंजर हंट की तरह है कि हर चैप्टर में आपको एक रेफरेंस दे दिया गया है कि इफ़ दिस हैज़ पीक्ड योर इंटरेस्ट, इफ दिस हैज़ पीक्ड योर इंटरेस्ट, हियर आर 10 more books that you can read specifically on this subject. And then that hopefully inculcates a lifetime of reading in everybody who picks up this book. तो मैं चाह रहा था कि ये जो इतना अच्छा काम हुआ है, remember, anytime we do anything, we're standing on the shoulders of giants. Unfortunately, we've been told that nothing existed in Pakistan and we were terrible and we will remain terrible and the people who will come after us are also terrible. So we feel anything that we do is unprecedented. आज से पहले तो ये हुआ ही नहीं.
आज से पहले तो किसी ने ये बातें की ही नहीं, हमारा जो लीडर है उससे बेहतर तो कोई आया ही नहीं। पर जब आप तारीख पढ़ें तो जहाँ जुल्म है, जहाँ सितम है, वहाँ रेजिस्टेंस भी है। So with this book also, I'm standing on the shoulders of these giants. अली उस्मान कासमी साहब है, उनकी एक बेहतरीन किताब है कौम मुल्क सल्तनत। मोहम्मद वसीम है, उनकी एक बेहतरीन किताब है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। So with this book, I'm not reinventing the wheel, but I'm trying to connect you to these great academics. कि जहाँ इनका काम हमें थोड़ा डॉन्टिंग लगता है, थोड़ा डेंस लगता है, थोड़ा मीमेबल नहीं लगता, थोड़ा स्क्रॉल नहीं कर सकते आप रात को 60 सेकेंड्स में। तो हाउ डू वी कनेक्ट यू टू दीज आइडियाज़ दैट एग्जिस्ट? हाउ डू वी टेक दीज आइडियाज़ फ्रॉम एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड ब्रिंग देम डाउन टू यू इन अ लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड, इन अ लैंग्वेज के आप जाकर अपने ड्राइवर से बात करें, अपने कुक से बात करें, उसको भी समझ में आ जाए कि बात क्या हो रही है। क्योंकि जब बात कल की हो रही है, बात आज की भी हो रही है। किताब अगर शुरू लाहौर रेजोल्यूशन से होती है NG, उसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन है, उसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं है। वो 23 मार्च को नहीं पास हुआ। 23 मार्च पहली दफ़ा सेलिब्रेट हुआ था रिपब्लिक डे, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस दिन अमल में आई थी। अच्छा शहजाद, आपने यू ऑल्सो टच्ड ऑन दिस राइट नाउ। आई थिंक पाकिस्तान में इतना कुछ होता है कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है सब कुछ प्रोसेस करना और याद रखना कि क्या क्या बड़े इवेंट्स हुए थे जो हमारी हिस्ट्री और हमारे करंट सिचुएशन को शेप करती हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा ये जो बड़े इंसिडेंट्स हैं हमारे हाल ही में उनको कवर किया है, लेकिन कोई ऐसी इंसिडेंट्स हैं या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपने अभी बुक में इंक्लूड नहीं किए और रेट्रोस्पेक्टिवली आप सोचते हैं कि शायद करने चाहिए थे? I'd love for Hood Boy साहब to weigh in on the topic in general as well before I talk. मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि it's almost like मोहम्मद आसिफ बैठे हुए हैं और मैं बता रहा हूँ अच्छा बॉलिंग कैसे करानी है। तो मुझे तनवीर अहमद बनने का शौक़ नहीं। सर प्लीज़। तो बहुत से बड़े मुश्किल सवालात हैं जो उठाने चाहिए और जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान दो में टूट गया और उसका टूटना पहले दिन से आप समझ लीजिए लिखा हुआ था। ये क्यों, तो ये कैसे मुमकिन था कि एक मुल्क दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, एक हिस्से की ज़बान दूसरे हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ, सकाफ़त मुख्तलिफ, एक ही चीज़ जो मुश्तरक थी वो मज़हब थी और मज़हब इनको जोड़ के नहीं रख सका। तो मैं समझता हूँ कि उस पर गौर करना, सन 71 पर गौर करना अशद ज़रूरी है, क्योंकि वही मसाइल आज हमें दरपेश हैं बलूचिस्तान में और अब KPK में। ये भी अब रोज़ बरोज़ इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें दो कौमी नज़रिए के ऊपर गौर करना है। क्या इसमें कोई हकीकत थी या एक घड़ी हुई चीज़ थी? तो मेरे अपने ख्याल में ये बनाई हुई चीज़ थी। पहले तो हिंदू इंतहा पसंदों ने इसको हवा दी और उसके बाद फिर मुसलमान भी इसमें शामिल हुए, बिलखुसूस सर सैयद और फिर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसको बारीक बीनी से देखना है कि इसका इर्तिका कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्या हमेशा से इस खित्ते में दो कौमें आबाद थीं या ये कि इनमें फ़र्क बतदरीज आया, और अगर आया तो वो क्या फ़र्क है और वो किस तरह से आया? तो मैं समझता हूँ कि ये आज के सवालात में शायद सबसे अहम है। शायद आप इस पे कुछ कहना चाहें। सर आपने जो बात की है वो अक्सर आपको भी ये फेस करना पड़ता है, मुझे भी ये फेस करना पड़ता है। इस तरह की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये एंटी पाकिस्तान बात है। आई थिंक ये बातें हमें थोड़ी और खुलकर करनी चाहिए आजकल, क्योंकि स्पेशली विद पैलेस्टाइन आई थिंक द वे अ लॉट ऑफ young people, a lot of you in the room
how you view the world has changed. How Palestine has also been described to you for decades as मुसलमान और यहूदी की जंग है. मैं भी मस्जिद में जाता था, ईद के बाद दुआ ये मांगी जाती थी कि यहूद निसार को ही निस्तो नाबूद कर दो. आप लोगों का हीरो सर सैयद होना चाहिए या बादशाह खान होना चाहिए? सर सैयद क्या कह रहे थे कि जो ब्रिटिश हैं लड़ो मत इनसे, ये आप लोगों के मास्टर्स हैं. गुड आइडिया टू सेल, इट्स अ गुड मिथ टू सेल. सो आई एम नॉट नेसेसरली अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ मिथ मेकिंग और द आइडिया ऑफ मिथ मेकिंग. इट इज़ द मिथ्स दैट वी टेल. जो भी उनकी नीयत थी, एट द एंड ऑफ द डे दैट वाज अ गोल एंड ही वांटेड टू अचीव इट. आप अगर आज की सियासत कर लें, अगर मैं आपसे वोट लेने आया हुआ था ITU में, आई वुड बी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी. अगर मैं बाहर जाके किसी मदरसे में बोलूँ और मैं आई कुड गो देयर एंड से मुझे नहीं लगता लड़के लड़कियों के साथ पढ़ना चाहिए, अलग स्कूल, आई कुड से दैट टू गेट देयर वोट. दैट इज़ व्हाट जिन्ना वाज डूइंग. जिन्ना ने 11 अगस्त को एक बात की, उससे कुछ महीने बाद कराची बार काउंसिल से कोई और बात की, खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने एक बात की, डायरेक्ट एक्शन डे से पहले उन्होंने कोई और बात की. बिकॉज ही वॉज अ पॉलिटिशियन एड्रेसिंग डिफरेंट क्राउड्स एट डिफरेंट टाइम्स, सेइंग डिफरेंट थिंग्स, he becomes an easy vessel for people to latch onto for their ideology. तो खुदाई खिदमतगार बादशाह खान की तारीख मौजूद थी, क्यों नहीं पढ़ी आप लोगों ने? आपके दौर में अरमान लूनी अगर यहाँ कोई बलूचिस्तान से हैं तो उनको गोली पड़ी. तो पाकिस्तान में रहते हुए सच भी बोले और सेफ भी रहें, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं. अगर कोई यहाँ सैयद मुज़म्मिल शाह को फॉलो करता है तो उसकी इस पर बहुत बातें हैं. अस्सलाम वालेकुम. तहाँ जी ॾाढी महिरबानी. इतना कुछ मैंने अचीव नहीं किया, जो आपकी मेहरबानी है कि आपने इतने प्यार से इंट्रोड्यूस कर दिया. मुझे ताल्लुक़ शिकारपुर से आए, पर मैं पला बड़ा कराची में हूँ. लम्स गया था, वहाँ से मैंने पहले BA LLB की. वो एक 5 साल का प्रोग्राम होता है. BA मेरा पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में था, फिर मैंने लॉ पढ़ा. The next question I have for you really is this book, like you just mentioned, it's a survey of, for those of you who haven't read it, it's, like I said, very compact, very accessible, sort of survey of Pakistan's historical development, and with the explicit aim of kind of correcting the record and of sort of explicitly stating what the true impetuses for Pakistan's historical development have been and what the real cast of characters have been up to, ranging from civilian politicians to the military. So what is, I mean, since we're at Lums, I have to ask you also, what was the biggest sort of misconception about Pakistan's history that you had that Lums really helped you kind of reconceptualize or reinterpret? And similarly, I guess in the same vein, the next question is, what do you think in the book is, or what do you hope is the biggest contribution of the book in terms of one big misconception your readers might have that you hope to correct through what you've written? तो एक वक्त जब पाकिस्तान ख्याल से पाकिस्तानियों का एक डिस्कनेक्ट है, एक वक्त जब एकेडमिक वर्ल्ड या एकेडेमिया में जो काम हो रहा है उससे आवाम का एक डिस्कनेक्ट है. मुझे लग रहा था ये एक इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पे जब politically aware, I'm using that with quotes because sometimes what you're aware of is not the truth, but at least politically inclined, politically interested हमारी यूथ हो रही है. तो वो एक सिलसिला है, वो शुरू होगा जब आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको इल्म होगा कि जो आज हो रहा है वो कल भी हुआ था, वो परसों भी हुआ था, और ये कहानी थोड़ी पुरानी है. आसानी करने के लिए थोड़ा पीछे ले जाते हैं ताकि ना आपको चीज़ें हमेशा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाएं. जब इमरान खान की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सनस का कैंप लगा हुआ था. उमर नारू जो हैं, अगर आप उनको जानते हो, एक मिसिंग पर्सन हैं, उनके बेटे छोटे से उस कैंप पे थे. मरियम नवाज़ ने उनको गोद में लेके तस्वीर खिंचाई. क्या मरियम नवाज़ बलोच लोगों की हीरो है? क्या शहबाज शरीफ बलोच लोगों का हीरो है? We think democracy is just Nawaz Sharif versus Zardari versus Imran Khan. That's not what democracy is. Democracy is a process. देखें, the left would argue that Trump was inevitable because of American democracy, because there is an idea on the left, or at least within Marxist and communist, that liberal democracy की feeling यही है कि वो fascism के राह हमवार करती है. वो डिबेट नहीं है. आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं कि अच्छा नहीं, मार्क्स एक्चुअली ये कह रहा था, बट वो 19-20 का फ़र्क है. व्हेन इट कम्स टू जिना ठीक है, वैल्यू लेडन डिस्कशन हम नहीं करेंगे. जो होता है हर जगह होता है. आप आयशा जलाल के आर्गूमेंट पढ़ें, आप यासिर लतीफ़ के आर्गूमेंट पढ़ें, आप इश्तियाक अहमद के आर्गूमेंट पढ़ें. आई थिंक किताब में मैंने यही कोशिश की है कि ये जो एक एक्सरसाइज है इन डिफाइनिंग व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड अ सर्टेन
part of our country or a certain elite has taken control of that, and by virtue of the fact that they have the power to define what Pakistan is and who a Pakistani is, they use that to control you. बंगाली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला बंगाली की स्क्रिप्ट बदल दो. Why? Because बंगाली जो है इट्स क्लोजर टू द हिंदू स्क्रिप्ट, अरेबिक स्क्रिप्ट कर दें, हम मुसलमान हैं. That's not a theological or a philosophical argument. That's a way to control East Pakistan and East Pakistan के resources. जिन्ना, इकबाल, सर सैयद, I think आपने भी इस बारे में बड़ी बात की है कि because there was a paucity of intellectuals in the Muslim League और in our history और specifically Muslim League की अगर हम बात करें, तो हम एक पूरी आइडियोलॉजी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह जिन्ना साहब या इकबाल साहब, कार्ल मार्क्स थे, एक पूरी आइडियोलॉजी देकर गए थे कि स्टेट क्या होगा, स्टेट कैसे नहीं. जिन्ना एट द एंड ऑफ द डे वाज अ पॉलिटिशियन. नॉट टू ब्रिंग इट बैक टू वन पर्सन जो ऑलरेडी कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं तू ऑब्सेस्ड, तू बार बार उसी की बात करता है. इमरान खान ने 50,000 स्पीचें दी होंगी. अगर तो हम शख्सियत परस्ती को रेजिस्टेंस का नाम लेके चलेंगे तो फिर हम गिरोह में ही बटे रहेंगे और ऑनलाइन वैसे ही कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं. सो वाई नाउ, वाई दिस, वाई मी. तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि ये बातें सारी आप अच्छी कर रहे हैं, आपसे हम ये क्यों सुने? आप तो एक पॉडकास्टर हैं, आप तो एक यूट्यूबर हैं, आप तो एक कमेडियन हैं. देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड द जेस्टर्स प्रिविलेज, एंड आई हैव अब्यूज्ड दैट प्रिविलेज अ लॉट इन पाकिस्तान. एनी टाइम समबडी आस्क्स आप कैसे बचे हुए हैं, आई इन्वोक द जेस्टर्स प्रिविलेज बिकॉज मैं एक कमेडियन हूँ, बिकॉज मैं प्राउडली अपने आप को एक कमेडियन कहता हूँ. तो मैं अक्सर ऐसी बातें कह सकता हूँ जो शायद एक संजीदा शख्स ना कह सके. उस लोगों को लगता है ये तो मस्खरा है, ये तो मस्खरापन कर रहा है. एंड दैट इज़ हाउ हिस्टोरिकली थिंग्स हैव वर्कड. इफ एनीबडी हैज़ रेड किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर, इट इज़ द कोर्ट जेस्टर हु कैन टेल किंग लियर व्हाट ही इज़, हु ही इज़, वेयर नोबडी कैन डेयर डू दैट. क्योंकि वो तो एक मस्खरापन है. अगर हम अपने लोकल कल्चर्स की बात करें तो भांड कल्चर में भी ये एक इन्वर्जन होती है कि जो कैरेक्टर स्टूपिड होता है वो अक्लमंद बात कर सकता है क्योंकि सबको वो स्टूपिड लगता है. तो मैं बड़ा प्राउड हूँ कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते. मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे सीरियसली लिया जाए ज़्यादा. आई थिंक वाइडर कल्चर पे तो हम लोग काफ़ी बात करते हैं. सैटायर स्पेसिफिकली सिंस टॉपिक था, अभी हमें याद आया, ज़रहार ने जो शुरू में कहा वो बात बिल्कुल सच है. जब सीज़ फायर हुआ गाज़ा का, अनियन की एक हेडलाइन थी, Israel will continue to kill Palestinians, just not at the rate they were doing it. That's satire. That's truly satire, but it's facts. जब दुनिया इतनी ridiculous हो जाए, जब ये बातें genuinely होना शुरू हो जाएं, एक satirist का काम होता है. मैं भी जिस वक्त लिख रहा था, नदीम भी जिस वक्त लिख रहे थे कि यार ये reality है, let me push it to the most ridiculous thing I can think of and write that. Where people will look at and be like, oh, the inherent logic of reality is flawed because when you push it to the most ridiculous nth degree, we see the fundamental flaws in this reality. We see the inherent ridiculousness. जब वो inherent ridiculousness लोगों को सच बनाकर पेश कर दी जाए कि असल में तो वो नंगे पैर चले थे इसलिए ये सब हो गया, असल में तो ये जो भी थ्योरीज आती हैं लोगों के बारे में, उनको असल में कबाब पसंद थे इसीलिए टर्की के साथ डील हो गई. अब जब ये लोग जेन्युइन बिलीव करते हैं, हम उससे और रिडिकुलस चीज़ कर क्या सकते हैं. मैंने जब डोमेस्टिक वायलेंस बिल के अगेंस्ट लोगों ने शोर मचाया था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वी एक्चुअली नीड अ प्रोटेक्शन ऑफ मैन बिल. विमेन की प्रोटेक्शन थोड़ी, मैन असल ऑप्रेस्ड हैं. मुझे लगा मैं सैटायर लिख रहा हूँ. 3-4 महीने बाद वो बिल टेबल हो गया. आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो ये जेन्युइन लोग सीरियस मुंह बनाकर कि औरतों की राइट की क्या बात, मर्दों की राइट, अभी ऑनलाइन ये जेन्युइन बातें की जाती हैं. तो ऐसे एनवायरनमेंट में बंदा क्या ही सैटराइज करे, क्या ही रिडिकुलसनेस दिखाए. इसमें क्यों अच्छा काम नहीं हो रहा जो आपने भी पूछा था. लोगों को समझ नहीं आती. फ़लस्तीन में ही बसाम यूसुफ ने आकर जो बातें की थी कि अच्छा ठीक है फिर फ़लस्तीनी मर जाते हैं, वो खामोशी से मर जाते हैं, शोर नहीं करते. आई थिंक इफ़ समवन वाज टू से द सेम थिंग अबाउट लेट्स से द बलोच पीपल, I don't think people, like even if I say it, I don't think people will get that I'm coming from a great place and I'm mocking the ridiculousness of what happens to the Baloch because so much hatred is spewed out. वो सैटायर भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा and sort of become maybe hurtful.
बी, मैं हर हफ्ते कोट भुगतता हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया था एक खातून के कपड़े जो वो डिज़ाइन करती हैं वो बदसूरत हैं। तो ऐसी जगह जहाँ आपको डेफेमेशन नोटिस आ रहे हैं, वीगोज़ आ रही हैं, टीवी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है। अगर 4 लोग बिठाकर 4 डब्बों में लोग डालकर हर रात शो चल रहा है तो उनका दिमाग ख़राब है। राइटर्स टीम रखें, एक शो बनाएं, उसके बाद फ़ोन कॉल आएँ, आपके जो एड्स आने बंद हो जाएं। ये तो एक बात है ना कि काली वीगो का आप नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस को नहीं कर सकते। HBL का करके दिखाओ सैटायर, नेस्ले का करके दिखाओ सैटायर, नहीं हो सकता। तो जब इतनी कदगने हैं, इतनी मजबूरियां हैं, सैटायर कहाँ से आएगा? स्वाबी में क्या हो रहा है, नवाबशाह में क्या हो रहा है, मैं कराची में बैठ के मुझे नहीं पता चल सकता। ना मेरी रिसोर्सेज हैं, ना मेरी एबिलिटीज़ हैं। काम है हमारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का। इस इंतज़ार में रहना कि डॉन आके कश्मीर कवर करे, जियो आके डॉन कश्मीर, आई थिंक उस इंतज़ार से आपको निकल कर थोड़ा अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। एंड देन फिक्स कैसे करना है, द सेम थिंग, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। आप नहीं फिक्स कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, बट इनफ पीपल व्हेन दे कम आउट, द स्टेट हैज़ टू फाइंड अ वे। अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है, आप टीवी शो देखते हैं, आप बोलते हैं ये एंकर ऐसा है, ये एंकर वैसा है, फ़ोन घुमाएं, यूट्यूब चलाएं। आप लोगों की जनरेशन से ज़्यादा आसान किसी के लिए कभी भी नहीं था कुछ भी करना। आपने एक पॉडकास्ट शुरू करनी है, आपके फ़ोन्स एग्जिस्ट करते हैं, आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आपके फ़ोन्स एग्जिस्ट करते हैं। एट दिस पॉइंट एवरीबडी हैज़ अ कैमरा। अब तो इंटरनेट एग्जिस्ट करता है। आप लोग मीडिया डिपार्टमेंट में, कुछ लोगों को फिल्म का शौक होगा, कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज का शौक होगा। इफ़ यू जस्ट मेक समथिंग पावरफुल इनफ। नहीं, अगेन ये 2-3 साल पहले सवाल शायद मैटर भी करता। अब अगर आप देखें कि एक फ़ोन इस तरह लगाकर दुनिया भर में लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, और जो शायद ज़्यादा चल रहे हैं, इवन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इंक्लूडिंग ज़रार्स, उन लोगों ने पॉडकास्ट लॉन्च किए हैं। हर चैनल का अब शौक हुआ है कि हम पॉडकास्ट करेंगे, बड़ा सेट लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। शायद वो पॉडकास्ट उतनी नहीं चल रही जितनी अनफिल्टर्ड बेकार कैमरा के साथ फ़ोन पे जो लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग फेमस हैं, उसमें से कई लोग हैं जिनका इक्विपमेंट नहीं है। आई एम श्योर लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होगा, ऐसे भी हालात हैं। बट फॉर पीपल हु आर इन द डिजिटल फील्ड, एटलीस्ट एक फ़ोन विद अ कैमरा तो आपके पास होगा ही होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर मेकिंग। अगर आपने शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो। पॉलिटिकल एनालिसिस आप फ़ोन पे कर सकते हैं, टिकटॉक्स आप फ़ोन पे बना सकते हैं। अब तो एडिट भी AI करके दे देता है। अगर आपको ये मसला था कि ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, वीडियो कहाँ से बनाऊँ, आपका B-रोल भी वो बना देगा। बहुत सारी ऐप्स हैं, तो अब तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर किसी को कंटेंट बनाना है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी और उसके बाद विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। थोड़ा से पॉजिटिव नोट पे, अगर आप दोनों मुझे 2-3 चीज़ें बता सकें जिससे विच मेक यू प्राउड अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़, यू पर्सनली। जो लोग मुझे ऑनलाइन फॉलो करते हैं, आई एम डूइंग अ सीरीज कॉल्ड 78 years 78 heroes. Literally हर रील when I see the kind of work people have done in the circumstances they've done it, देख कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप शायद लगता भी नहीं है कि आप मुल्क में नैरेटिव्स बदल रहे हैं। हदीका कियानी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, बड़ी दुनिया भर में एक नॉर्मल चीज़ है, बट पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। शहजाद रॉय ने वही बच्चे सड़क पे देखे जो आपने देखे, मैंने देखे। क्वाइटली ही स्टार्टेड अ ज़िंदगी ट्रस्ट, इट इज़ ह्यूमंगस नाउ। अकूवत जब स्टार्ट हुआ था, इसी तरह छोटी सी स्टार्ट हुआ था, उन्होंने $1 billion से ज़्यादा लोन्स दे चुके हैं, जिसमें 7 लाख फैमिली से ज़्यादा लोगों की मदद हो चुकी है। आप लिटरली कोई भी फील्ड निकाल दें, एक मसला ये आ गया है, लेट मी शो यू दैट आई हैव बिकम अ बूमर बाय स्टार्टिंग टू कंप्लेन अबाउट जेन ज़ीज़। आई थिंक जेन ज़ीज़ को बिकॉज आप लोगों को सच्ची तारीख नहीं बताई, यू थिंक एवरीथिंग इज़ न्यू, यू थिंक everything that is happening is unprecedented, whether it's even Aurat March. Aurat March is great, but WAF was also great. Sindhyani Tehreek was also great. Anything that you're doing by realizing that you're standing on the shoulders of giants and people have done phenomenal work, अगर ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं. So yeah, not 2-3 things. I have 78 reels on things that make me feel proud. ये जो थोड़ी नेगेटिविटी ऑनलाइन फैलाती है उसको मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए भी इस्तेमाल करें कि
पाकिस्तान में हर फील्ड में ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आपके दिल में ख्याल आता है कि जिस अल्लाह ने इसको भी सक्सेसफुल बना दिया उसने मेरे लिए भी कुछ सोचा होगा। तो आज मैं खड़ा हूँ, अगर मैं एक मैसेज देकर आपको यहाँ से जाऊँ वो यही होगा कि मुझे देखकर सोचें कि अगर अल्लाह ने इसको यहाँ खड़ा कर दिया तो उसने हमारे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। थैंक यू सो मच।